Hello everyone, welcome to our online class for the course Business Studies of class 12. This lecture will be our last lecture of Unit 1, but in order to understand this lecture, we have to go through one video. So let's go to the video and try to understand and write the points what they are actually to show you. And it's very simple video which you see in your day-to-day life and which is related to your day-to-day life and is essential. The work which they are doing or the services which they are taking, or people who are taking services, is essential for our living. Okay, so let's go through the video. Mumbai has over 18 million people. The city, it's unpredictable. But amidst this chaos, there is one thing that is nearly 100% reliable. It's your lunch delivery. The Dabbawallas of Mumbai are an institution. A Dabbawalla is a guy who delivers homemade lunches. मेरा नाम किरण गवांदे है और मैं डब्बावाला हूँ। बिजनेस में ज्वाइन किया और तब से मैं 12-13 साल से काम कर रहा हूँ। खाली बॉम्बे में हम रोजाना 2 लाख डब्बा पहुँचाने का काम, खाली साइकिल और ट्रेन ये दोनों चीज़ों से मिलके डब्बा पहुँचाने का काम करते हैं। This is how the system works. The Dabbawalla comes to your home and picks up your lunch. He goes to the train station where all the other lunches are. They are sorted and then delivered out into the city to be dropped off at your office. You eat it, the Dabbawalla comes, picks it up, and brings your lunchbox back home. That's the key word, home. These aren't takeout delivery guys. They're delivering you a meal straight from your kitchen. This system, while seemingly rudimentary, has been recognized as one of the most efficient logistics systems in the world. Dabbawallas have an accuracy of 99.99% in their deliveries. Per million transactions, less than 4 mistakes are made. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जिस डब्बे के ऊपर जो कोड होता है, कोड में क्या होता है कि मतलब कुछ आंकड़े डाले जाते हैं, कुछ कलर कॉम्बिनेशन होता है। गलती मतलब कि कोड डब्बे के ऊपर इतना परफेक्ट डाला हुआ है कि उससे गलती होने की कोई संभावना ही नहीं है। Crisscrossing side streets on bikes, balancing trays that weigh almost 150 pounds on their head, this group of 5,000 men, they help define the city. बॉम्बे में कम से कम उसको 125 साल हो गए। ये सिस्टम और किसी दूसरे जगह पे नहीं चला। थोड़ा सा हार्डवर्क तो है, तो आदमी मतलब थोड़ा सा थकता है, लेकिन क्या वो अगले दिन वापस एक नए जोश से स्टार्ट हो जाता है। These guys are out there 6 days a week, monsoon or shine. Life in Mumbai, it can be chaotic. Your train might be late, your power might go out, but damn it, your lunch will be on time. So the video which you saw, ये एक ऐसी वीडियो है जो मुंबई में डिफरेंट टिफ़िन सर्विस वेंडर्स की बात कर रही है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो घर से खाना उठा रहे हैं या टिफ़िन बॉक्स उठा रहे हैं और फिर उनको थ्रू रोड ट्रांसपोर्ट और हम कहें कि थ्रू रेल ट्रांसपोर्ट के ज़रिए वो यूज़ करके लोगों को पहुँचा रहे हैं। सच एज वाई दे आर डूइंग दीज थिंग्स। यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि उनके घर से जिन्होंने भी टिफ़िन सर्विस को लिया है, दे आर नॉट मेकिंग देयर द फूड और मेकिंग द टिफ़िन्स बाय देमसेल्व्स, दे आर नॉट कुकिंग द फूड, बट दे आर डिलीवरिंग द फूड from the very point of the home and to the destination, that is it may be office or it may be a shop. यहाँ पर इनका काम किस तरह से स्टार्ट होता है? आपका काम यहाँ पर टाइमिंग के बेस पे हो रहा है। टाइमिंग, यस, इट्स अबाउट टाइमिंग। फर्स्ट उस टाइमिंग को एक प्रॉपर एफिशिएंट तरीके से करने के लिए या उस काम को अच्छे तरीके से करने के लिए सबसे पहले उन्होंने प्लानिंग की। अब देखें यहाँ पर साफ साफ मैनेजमेंट को हम देख सकते हैं दैट हाउ दे आर मैनेजिंग देयर टाइम, हाउ दे आर मैनेजिंग देयर कस्टमर्स इन अ वे कि उनको डिफरेंट प्लेसेस पर जाकर सबसे पहले टिफ़िन्स कैसे कलेक्ट करने अकॉर्डिंग टू द कोड्स गिवन ऑन द टिफ़िन बॉक्सेस।
उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन टिफ़िन्स को उठाकर एक जगह इकट्ठे हुए वो लोग, और फिर वहाँ से देखिए आप देख सकते हैं ट्रेन्स के थ्रू जा रहे हैं, फिर वो ये भी कह रहे हैं कि साइकिल्स के थ्रू भी जाते हैं, इवन अपने सिर पर बोझ उठा के, जो 150 पाउंड्स का हम देख सकते हैं कि वो इतना ज़्यादा वज़न उठा के रेलवे स्टेशंस पर जो है या रेलवेज़ के थ्रू ट्रैवल भी कर रहे हैं। सो इतनी बड़ी ये कह रहे हैं नंबर्स में वो किस तरह से अपने टिफ़िन्स को या लोगों के टिफ़िन्स को उनकी जो है ऑफिसेस तक पहुंचा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनमें जो है लोग बहुत ही उम्दा तरीके से काम कर रहे हैं। इनको पता है कि ये काम बहुत ज़्यादा मतलब हैवी वर्क है या बर्डन वाला काम है, लेकिन फिर भी इनको वो ये जानते हैं कि हमने कौन सा टिफ़िन किन को पहुंचाना है और ये काम किस तरह से हो रहा है। येस, इट्स अबाउट मैनेजमेंट, ऑब्वियस इट्स अबाउट मैनेजमेंट। दे आर कोऑपरेटिंग विद ईच अदर। आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये सभी जो है टिफ़िन्स पहुंचाने के लिए एक दूसरे के साथ जो क्या कर रहे हैं, कॉर्पोरेट कर रहे हैं। कॉपरेशन के साथ साथ इन्हें किसकी ज़रूरत है, दे नीड कोऑर्डिनेशन बिटवीन एक्टिविटीज़। सो येस, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द टर्म कोऑर्डिनेशन विच इज़ ऑल्सो द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. Okay, so this will be our 6th lecture and the last lecture of unit 1. So why coordination? Because if I talk about coordination का जो हिंदी में अगर हम मतलब समझें, इंग्लिश में तो हम पता है कि कोऑर्डिनेट करना, बट हिंदी में अगर हम समझें सो इट्स अबाउट तालमेल बिठाना डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, लोगों के बीच में, डिफरेंट जो है फंक्शंस में। जैसे हमने देखा प्लानिंग के बाद उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। अगर हम उनसे टिफ़िन सर्विस की बात करें तो दे प्लान कि हमने ये काम करना है, और हम घरों में लोगों के टिफ़िन्स को घरों में से उनके जो होम कुक्ड फूड है उनको हम उनके ऑफिस तक पहुँचाएंगे। दिस विल बी देयर प्लान्ड एक्टिविटी। बट उसके बाद उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया कि कौन कौन सी जगह पर वो काम जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। ओके, फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि कस्टमर्स कहाँ कहाँ से हम लेंगे और किस तरह से हम लोगों को अवेयर करेंगे इस टिफ़िन सर्विस के बारे में, ऑल दीज थिंग्स। देन दे अलॉट डिफरेंट पीपल स्टाफिंग, they recruited different people for this tiffin service delivery. Okay, then उसके बाद उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट कर रहे हैं उनको कि किस तरह से कोडिंग के थ्रू आपने लोगों के टिफ़िन्स को उनके घर से लेकर उनके ऑफिस तक या शॉप्स तक डिलीवर करना है। ओके, अब जब इस काम को इतने इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से किया जा रहा है, जहाँ पर ऑन टाइम डिलीवरी हो रही है और आप जो है लेस कॉस्ट, आप देख रहे हैं वो कोई भी प्राइवेट व्हीकल नहीं यूज़ करे, दे आर यूजिंग साइकिल्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस और लेस द कॉस्ट। दे आर यूजिंग द पब्लिक ट्रांसपोर्ट दैट इज़ रेल ट्रांसपोर्ट। सो ये है हमारा रिड्यूस करने, कॉस्ट को रिड्यूस करने का तरीका। तो इस तरह से कम कॉस्ट और ऑन टाइम पर वो किस तरह से अपनी सर्विसेज को दे रहे हैं, इट ऑल नीड्स मैनेजमेंट। और उस मैनेजमेंट को करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत होती है, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन. ओके, coordination is the main thing which binds all these things into one rope. Okay, so let's get started with this lecture, with the meaning or what is coordination. Okay, so coordination is the process by which a manager synchronizes the activities of different departments. जैसे हमने कहा कि एक मैनेजर का काम है सिंक्रोनाइज करना, एक जगह लेके आना डिफरेंट एक्टिविटीज़ को, या उनको एक साथ जो है काम करवाना कि वो एक गोल को अचीव कर पाएँ. सेकेंड इज इट इज़ अ फोर्स दैट बाइंड्स ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. यस, ये सभी फंक्शंस को एक साथ बाइंड करने में हेल्प करता है. जैसे हमने कहा कि ऑल फंक्शंस आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. We can't say that every function plays or has a unique feature, और हम कहीं ऐसा नहीं कह सकते हम unique feature, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं. नो, हमें इन फंक्शंस को मैनेज करने के लिए हमें इन फंक्शंस को साथ साथ करना पड़ेगा और एक प्रोसेस के थ्रू हमें इसको अचीव करना होता है. तो कोऑर्डिनेशन ही है जो इन फंक्शंस को बाइंड करके रखती है. ओके, नेक्स्ट हम कह सकते हैं इट इज़ द कॉमन थ्रेड दैट रन्स थ्रू ऑल एक्टिविटीज सच एज परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स एंड फाइनेंस टू इंश्योर कॉन्टिन्यूटी इन द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, अब यहाँ पर ये एक ऐसा धागा है, या हम कहें एक ऐसी जगह है, या हम कहीं इसको हम एक कॉमन धागे की तरह बात कर रहे हैं जिसमें सभी की सभी एक्टिविटीज़, पहले उन्होंने बात किया डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में, फिर वो बात कर रहे हैं फंक्शंस के बारे में, देन now they are talking about activities.
different activities such as purchase, production, sale and finance to ensure continuity in the working of the organization. It means we have to bind all these activities in such a way that it will not give any adverse result. Purchase करना, फिर उसके बाद हम परचेज, what purchase department will do, they will collect all the raw material, they will purchase the machinery, or they will purchase any kind of like spare parts or tools or anything of machine in order to produce the product, or in order to continue the production process. उसके बाद वो produce product को sales करेंगे. हाँ, अगर हमें आगे कुछ पैसे की ज़रूरत है तो उसके लिए वो फाइनेंस भी करेंगे. ओके, तो ये हमारे कॉन्टिन्यूटी है, क्योंकि फाइनेंस हमें फर्दर परचेज के लिए भी रिक्वायरमेंट होता है. सो इट बिकम्स अ साइकिल, इट बिकम्स द साइकिल ऑफ द एक बिजनेस का साइकिल बन जाता है. ओके, तो इसको हम कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, उसको कंटिन्यू करने के लिए हमें इन सभी एक्टिविटीज़ को एक साथ लेके जाना होता है, विच नीड्स कोऑर्डिनेशन. विदाउट कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एक्टिविटीज़ यू कांट work in an organization, or you can't say that organization will survive for long run. Okay, next is coordination is implicit and inherent in all functions of an organization. Yes, it is implicit, ये उसके अंदर ही समाई हुई है. अगर कोऑर्डिनेशन ना हो फंक्शंस में, या हम कहें डिफरेंट प्लानिंग में, आप आपस में ही आपकी कोऑर्डिनेशन नहीं है, दोज हु आर सेटिंग द स्टैंडर्ड्स, दोज हु आर मेकिंग द प्लान्स, मेकिंग द बजट्स, दे डोंट हैव कोऑर्डिनेशन इन अमंग देम. सो वी कांट से दैट दे विल प्लान इन अ बेटर वे फॉर द वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो coordination is required at each step of the function, or in each function of management. Okay, next is, it is an essence of management for achieving harmony among individual efforts towards the accomplishment of group goals. Yes, it is an essence of management. हार्मनी अचीव करने के लिए इंडिविजुअल एफर्ट्स के थ्रू क्या करना है, हमने अकम्प्लिश करना है ग्रुप गोल्स को. ठीक, अब इसमें जो है हम हार्मनी को अचीव कर रहे हैं, लेकिन अचीव करना ऐसे नहीं होगा. हार्मनी तभी अचीव होगा इफ़ आई suppose we are 34 students in a class. I gave you a project on some theme, but you all are have some kind of grudges in between you made groups that we will work in group, but I gave you individual task, I gave you individual efforts to be put in. You yourself are not you people are not agreed to do work in a group. It means your individual agreement is not there. यहाँ पर आप जो है अपनी एफर्ट नहीं लगा रहे हैं. इट मीन्स हार्मनी विल नॉट बी क्रिएटेड अमंग दी और इन द इन्वायरमेंट टू डू एनी टास्क. ये हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन चाहिए. किस लिए चाहिए? ताकि हम हार्मनी बना सकें. हमें कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़ में लाना है, वो हम इंडिविजुअल एफर्ट्स के थ्रू ही ला सकते हैं, ताकि हम ग्रुप गोल्स को अचीव कर पाएँ. कि ग्रुप एफर्ट्स तभी आएंगे व्हेन यू आर इंडिविजुअली एग्री टू डू द वर्क विद द सेकेंड इंडिविजुअल. ओके, दैट्स हाउ यू क्रिएट हार्मोनियस रिलेशन अमंग ईच अदर. ओके, सो नेक्स्ट वी विल गो थ्रू the definitions of coordination given by different management experts. First one is given by Kuntz and O'Donnell. He said coordination is the essence of management for the achievement of harmony of individual efforts towards the accomplishment of group goals. हमने ये ऑलरेडी पढ़ लिया है कि किस तरह से कुंट्स और डोनल ने क्या क्या बताया कि कैसे हम ग्रुप गोल्स को अचीव कर सकते हैं. नेक्स्ट इज गिवन बाय EFL Brecht. EFL Brecht. What this expert is saying, coordination is balancing, where both both things or both opposite sides are in same condition. Balance करना, keeping together the team by ensuring suitable allocation of tasks to the various members and seeing that the tasks are performed with harmony among the members themselves. coordination जब हम कर रहे हैं, हमें harmoniously करना है, हमें सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा एक्टिविटीज़ को, और उसी के थ्रू हम
हार्मनी देखेंगे कि किस तरह से हारमोनियस रिलेशनशिप और हर एक तरह से तालमेल हम बना सकें मेंबर्स के बीच में भी, और वही मेंबर्स फिर टास्क जो परफॉर्म करें उसी तरीके से करें। इन्होंने कहा बैलेंस करना और सभी टीम मेंबर्स को एक प्रॉपर टास्क देना जो वो डिज़र्व करते हैं, और उन टास्क को देखना कि क्या वो टास्क प्रॉपर तालमेल के थ्रू हो रहे हैं उन मेंबर्स के बीच में। तो ये कोऑर्डिनेशन है, टू बैलेंस एंड टू परफॉर्म विद हार्मनी। ओके, नेक्स्ट इज गिवन बाय थियो हैमन। Coordination is the orderly synchronizing of efforts of subordinates to provide proper amount, timing and quality of execution so that their united efforts lead to the stated objectives, namely the common purpose of enterprise. Order में synchronize करना efforts को subordinates की, ताकि आप उनको proper amount दे पाएँ उस काम के लिए। What do you mean? Salary, wages, timing provide करें, on what time you have to complete this task, क्वालिटी बताएं आपको किस तरह से इसके अंदर काम करना है कि आपको इस तरह की क्वालिटी या आप क्वालिटेटिव वर्क करवा पाएँ, सो डैट देयर यूनाइटेड एफर्ट्स लेट अस स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स, जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं या जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आपको बताए हैं उनके एफर्ट्स को प्रॉपर तरीके से अचीव करना। ओके, जो उनका कॉमन पर्पस है एंटरप्राइज का। Okay, so these are the few definitions of coordination. You can learn any one of them which you feel comfortable. So I hope you understand what coordination is. Next is characteristics of coordination. Characteristics includes group efforts, unity of action, continuous process, all pervasive function, responsibility of all managers, deliberate functions. ओके, अब करेक्टरिस्टिक्स में आप देख सकते हैं कि इसमें कोऑर्डिनेशन के अंदर हमें ग्रुप एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। इन ऑर्डर इफ़ यू वांट टू कोऑर्डिनेट समथिंग और यू वांट इट नीड कोऑर्डिनेशन, यू नीड ग्रुप एफर्ट्स अमंग द टीम मेंबर्स। आपने इंडिविजुअल एफर्ट्स की बात की, येस, individual willingness should be there. You must put individual efforts which further result into group efforts to achieve a particular goal. Okay, now group efforts we need if I say coordination is required in group efforts, obvious number of activities is to be coordinated among the individuals. अब अगर आप कहें कि इंडिविजुअल एफर्ट की जा रही हैं तो आप कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे, यू आर जस्ट सेइंग दैट येस यू आर डायरेक्टिंग दैट पर्सन, ही इज कंप्लीटिंग द वर्क, बट कोऑर्डिनेशन शुड बी अमंग द मेंबर्स और अमंग द डिफरेंट ग्रुप मेंबर्स, ओके, विच helps you to coordinate among the different team or among the different team members within. Clear है? Next is coordination ensures unity of action. How unity of action? It means during coordination process an effort is made to create unity among the various activities of an organization. आप काम unity कहेंगे action की, किस तरह एक्शन कैसे होगा? थ्रू एक्टिविटीज. इट मीन्स यू हैव टू यूनाइट द एक्टिविटीज इन वन और टू अचीव वन कॉमन गोल. किस तरह की एक्टिविटीज़ की बात कहें? परचेज, सेल्स. अब अगर परचेज आप कर रहे हैं लेकिन सेल्स आपकी हुई नहीं, further if sale is not there, or if I say you don't know how much you have to produce to supply in the market, because sales department doesn't communicated with you, it means there is no unity among the departments or different activities. So that's why we need coordination among the different activities of the organization in order to reduce the cost, in order to produce the product on time, or in order to achieve the goals on time also. So that's why coordination is required, or it ensures, when coordination is there, it helps you to ensure the unity of action. Okay, next is coordination is a continuous process. We can't say that if I coordinated anything
अर्लियर, आई डोंट नीड कोऑर्डिनेशन फॉर द फुल ईयर. मुझे हर एक टाइम पर जब भी मेरी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही है उस ऑर्गेनाइजेशन में, आई नीड कोऑर्डिनेशन एट दैट पीरियड ऑफ टाइम. आप कुछ भी कोऑर्डिनेट करें, आप कुछ भी काम करें, आप हर काम जो है, या हम कहें द लार्ज स्केल वर्क, और व्हेन वर्क इज प्रोसेस्ड, और वी कैन से डन ऑन लार्ज स्केल, it needs coordination, because you have to coordinate the different activities, you need to coordinate the people, you need to coordinate the different processes. इस चीज़ में आपको, अगर आप बहुत सारे लोगों से काम करवा रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन में चल रही हैं, इट नीड्स कोऑर्डिनेशन, बिकॉज विदाउट कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट कैन नॉट बी डन. Suppose you said that you assign different kind of duties to number of people of different departments, but what they are doing, they don't have cooperation among them. वो आपस में cooperate नहीं कर रहे हैं. तो आपने अपने तरीके से मैनेज कर लिया, बट जब तक आप उनको कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, आप उनको समझाएंगे नहीं that what problems you are facing or why they are doing so, हाउ यू कैन मैनेज योर वर्क, आप उनको समझाएंगे नहीं, तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन भी नहीं होगी. आपको हर चीज़ उनको बतानी पड़ेगी कि आपने इस काम इस तरीके से करना है और आप इस काम को इस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. और ये एक्टिविटी जो है मैनेजमेंट के साथ साथ कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है. सो दैट्स वाई इट रिक्वायर्स एट एवरी स्टेप ऑफ एक्टिविटी. ओके, नेक्स्ट इज इट इज़ ऑल परवेसिव फंक्शन. ऑल परवेसिव हम जानते हैं, इट इज़ यूनिवर्सल और एप्लीकेबल टू एवरीवन. अब यहाँ पर करें कि परवेसिवनेस आप जानते हैं कि ये वो चीज़ है जो एप्लीकेबल टू ऑल स्फीयर्स है, चाहे वो बिजनेस या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, और ये यूनिफॉर्मली जो है हर जगह एप्लीकेबल होता है. कह रहे हैं कि जैसे आपने कहा कि आपने कोऑर्डिनेट किया, आपको पता है कि आपने किस तरह से लोगों को काम देना है, और ये काम जो है हर जगह ही इम्प्लीमेंट होगा. सच एज हमारे स्कूल में ही टाइम टेबल, वी फॉर्म टाइम टेबल. ओके, सो यू आर कोऑर्डिनेटिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स फॉर डिफरेंट क्लासेस. इट मीन्स आपने काम को अच्छे से डिवाइड किया. यू नो हाउ टू प्रोवाइड द एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स इन अ बेटर वे. दिस इज मैनेजमेंट, बट मैनेजमेंट रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेशन एंड इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल. चाहे वो स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे किसी भी गेम की बात करें, कहीं पर भी बात करें, हमें कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट हर जगह होती है. ओके, जैसे मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट हर जगह होती है. सो विदाउट कोऑर्डिनेशन वी कांट मैनेज. सो दैट्स वाई कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट एवरी प्लेस. नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स. चाहे वो टॉप लेवल है, चाहे वो लोअर लेवल है, चाहे वो मिडिल लेवल है. यहाँ पर मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि कैसे कोऑर्डिनेशन वो कर सकते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ के बीच में. नेक्स्ट इज अबाउट कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन. डेलिब्रेट मीन्स विच इज समथिंग डन नोइंगली, नॉट अननोइंगली. आपने कोई काम जानबूझकर नहीं, आपने सोच समझ के किसी काम को किया है. डेलिब्रेट एक्टिविटी और डेलिब्रेट एक्शन. कोऑर्डिनेशन को करने के लिए आपको बहुत सोच समझ के चीज़ों को डिवाइड करना होगा, ड्यूटीज़ असाइन करनी होंगी, एक्टिविटीज़ को डिवाइड करना होगा, ताकि आप उनमें तालमेल बिठा सकें. अगर आप जानते ही नहीं है कि कौन सी एक्टिविटी मुझे किस पर्सन से करवानी है, तो आप कोऑर्डिनेशन भी नहीं ला सकते, आप मैनेज नहीं कर रहे इट मीन्स ठीक से. तो दैट्स वाई इट इज़ अ डेलिब्रेट एक्टिविटी. ओके, अब यहाँ पर इसमें डेलिब्रेट फंक्शन इसलिए भी है क्योंकि आप जो है ग्रुप एफर्ट्स के थ्रू आप काम करवाते हैं, जहाँ पर एफर्टलेसली काम करना पड़ेगा, और दूसरी चीज़ कि वो लोग कलेक्टिवली काम करने के लिए राज़ी हैं. सो दैट्स वाई इट इज़ अ डेलिब्रेट फंक्शन. आप अपनी मर्ज़ी से कोई काम को अंजाम दे रहे हैं, सो दैट्स वाई और हेंस इट नीड्स कोऑपरेशन एंड फर्दर इट इंश्योर्स द कोऑर्डिनेशन. ओके, so these are the meaning and we have done up to this meaning, definition and characteristic. Next we will do in the next video.